Welcome back, guys. My name is Omkar Rajput and you are on the channel Doubt Counter. Today in this session we will start a brand new chapter of maths of standard 10th, that is chapter 8 trigonometry. ठीक है, this chapter is very much important from your 10th point of view से अगर बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें या फिर फ्यूचर स्टडीज के लिए भी बात करें, फॉर एग्जाम्पल 11th 12th फ्यूचर के लिए भी बात करें. फॉर दिस चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. करेक्ट, इसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर अच्छी तरह समझोगे तो ये चैप्टर बड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, सो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बता दूं, क्योंकि चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपके पास स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर 9 है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. वो भी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस ही है. फिर आप 11th 12th में अगर आप पढ़ोगे, साइंस में अगर मैथ ले रहे हो, सो यू विल स्टडी अगेन ट्रिग्नोमेट्री. करेक्ट, सो यू नीड टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक्स. व्हाट डू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? So let us start the chapter without wasting our time. Let's get started. Correct? So trigonometry, the word itself says tri. Tri stands for 3, gon stands for sides, and metry stands for measurement. Correct? So this is all about triangle, and that also a right angle triangle. In this chapter, this chapter we will talk about triangles, and that is your right angle triangle. Correct? As you know, in a triangle you have 3 angles and 3 sides. Correct, so there are tri, that means 3, gons, that means sides, and measurement. So you have the measurement of 3 sides, or you can say measurement of 3 angles also, you can say measurement of 3 sides also. Correct, so in this chapter आप पढ़ोगे 3 sides के measurement के बारे में, 3 angles के measurement के बारे में. और कौन सा triangle पढ़ोगे, which triangle you will study, that is your right angle triangle. Correct, so let us draw right angle triangle. Basics से start करते, formula से start करते. So this is a right angle triangle. Correct, this is a right angle triangle at angle B. ये एक right angle triangle है angle B पे. ठीक है, so आपको ये बात फाइनल पता होगी कि in a right angle triangle the longest side, that is this is called hypotenuse. ठीक है, अब जो हमको आज पढ़ना है that is your trigonometric functions पढ़ेंगे. हमारे पास 6 trigonometric functions है, उसकी स्टडी करेंगे. Then after we will solve exercise 8.1. Correct, so let us start with the formula. Let us start with the trigonometric functions. So how many trigonometric functions you have? You have only 6 trigonometric functions. और ये 6 trigonometric functions 11th 12th और आने वाले फ्यूचर स्टडीज में भी 6 ही हैं. ऐसा नहीं हो रहा है कि 7 8 trigonometric functions हो जा रहे हैं. ठीक है, so you have only 6 trigonometric functions. So first trigonometric function is sin. ठीक है, first trigonometric function is sin. Then you have cos. Then you have tan. Fourth one you have cosec, fifth one you have sec, and sixth one you have cot. कैसे ट्राइंगल वापस देखो एक बार. साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट. These are the 6 trigonometric functions. Once again, sin, cos, tan, cosec, sec and cot. Correct? And all these trigonometric functions are used with angles. हमको इसको angles के तौर पे यूज करना पड़ता है. ठीक है, you can take angle कुछ भी ले लो. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस लेट अस टेक दिस एज एन एंगल और इसको अपने थीटा लेके चल दे. वेयर थीटा इज दिस इज कॉल्ड थीटा. इसको थीटा बोलेंगे. थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल. कैन बी एनी एंगल. 0 to 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है. ठीक है, 90 से छोटा होगा, 90 से बड़ा नहीं होगा, तो कोई भी एंगल हो सकता है, वेदर इट इज 30 45 कुछ भी ले लो. तो दिस थीटा इज एन एंगल. ठीक है, तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके सब एक एंगल में ही यूज होते हैं. सो लेट अस से दिस थीटा 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 एंड थीटा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द साइड्स आल्सो. सी, ये थीटा के लिए जो अपोजिट साइड होती है, दिस इज आवर अपोजिट साइड. इस थीटा के लिए दिस कॉल्ड इज अपोजिट साइड. सो दिस ए बी को हम बोलेंगे अपोजिट साइड. और इसके जस्ट बाजू में जो साइड होती है, जस्ट बाजू में, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड. करेक्ट, दिस इज कॉल्ड अपोजिट साइड. दिस इज हाइपोटेनस विच इज फिक्स्ड एंड दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड. अगर एंगल बदलेगा, इफ आई टेक दिस, ये अभी एंगल यहां पे, इफ आई टेक दिस एज एन एंगल, सो होगा क्या, इसकी अपोजिट साइड, दिस विल बिकम अपोजिट साइड, दिस विल बिकम एडजेसेंट साइड. ठीक है, सो हम व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट ऑल द फॉर्मूलास. हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलास लिखेंगे, फिर एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो लुक एट द फॉर्मूला, कैसे इसको रीड लर्न करना है, कैसे इसको देखना है. लुक एट हियर. नाउ साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? It is your opposite upon hypo. You need to remember what is sin theta. It is your opposite upon hypo. So in this case, what is the opposite side? That is your AB. Correct.
and hypo, that is your AC. Got it? So sin theta, the formula of sin theta is again that is opposite upon hypo. In this case opposite is AB and hypo is AC. Now cos theta, the formula of cos theta is adjacent upon hypo. Correct? So cos theta, the formula of cos theta is adjacent upon hypo. In this case adjacent side is BC and hypo is AC. Correct? So you got the two formula of sin theta and cos theta. Sin theta is opposite upon hypo and cos theta is adjacent upon hypo. Correct? In all this trigonometric function जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज योर साइन एंड कॉस. अगर आपको साइन कॉस याद हो गया, अगर आपको फॉर्मूला ऑफ साइन कॉस याद हो गया, देन यू कैन मैन्युफैक्चर टेन थीटा एज वेल, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यू कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस. ठीक है, तो याद रखना कि टेन, यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. एक फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड टेन थीटा का फॉर्म है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस. अब आने वाले अगर फ्यूचर स्टडीज में इफ आई से टेल मी द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो ये आप फॉर्मूला बोलोगे. सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस इज साइन अपॉन कॉस. द फॉर्मूला इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो जो भी साइन थीटा की वैल्यू है या जो भी कॉस थीटा की वैल्यू है, जस्ट डिवाइड बोथ ऑफ देम. आपको क्या मिल जाएगा? टेन थीटा मिल जाएगा. ठीक है, सो लेट अस टेक व्हाट इज साइन थीटा. साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपो एंड कॉस थीटा इज अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपो. अगर डिवाइड करें, यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो हाइपो हाइपो कैंसिल हो जाएगा. व्हाट रिमेन्स इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. क्या फॉर्मूला बन गया टेन थीटा का? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. इन अवर केस अपोजिट इज ए बी एंड एडजेसेंट इज बी सी. सो यू गॉट द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा. लर्न नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको अगर साइन और कॉस याद है दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपो एंड कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो. तो आप डायरेक्ट हाइपो हाइपो डिवाइड हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा. करेक्ट. नाउ कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा. रेसिप्रोकल ऑफ द साइन मतलब जस्ट इसका उल्टा कर देना है. तो जो आपका अपोजिट अपॉन हाइपो है जस्ट रेसिप्रोकल इट. सो हाइपो ऊपर चले जाएगा एंड अपोजिट नीचे आ जाएगा. सो द फॉर्मूला इसको अगर उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी. करेक्ट. नीड टू रिमेंबर कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. दिस कोसेक थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बाय साइन थीटा. ये रेसिप्रोकल ही हो गया ना साइन का, समझ रहे हो? कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो हो गया 1 बाय साइन. सो साइन की जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देने का? जस्ट उल्टा कर देने का. देन सेक थीटा इज द अपोजिट ऑफ दिस कॉस. सो जो कॉस की वैल्यू उसको क्या करोगे? उल्टा. दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो. तो ये हो जाएगा अपना हाइपो अपॉन एडजेसेंट. ठीक है, इस केस में इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए सी अपॉन बी सी. इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो दैट इज 1 बाय कॉस थीटा. ठीक है, सो ये ऑब्टेन सेक थीटा क्या है, किसका उल्टा है? दैट इज योर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. नाउ कॉट, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दिस कॉट थीटा इज अगेन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टेन. तो जो टेन की वैल्यू होगी इसको उल्टा कर दो. सो टेन इज साइन अपॉन कॉस, उल्टा करो इसका. सो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उल्टा कर दो. सो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. ये वैल्यू है, इसको भी उल्टा कर दो. सो बी सी अपॉन ए बी. सो यू कैन सी इफ अगर आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद हो गए दैट इज साइन एंड कॉस, अगर आपको याद हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा याद हो गया दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपो एंड एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस आप टेन भी निकाल सकते हो, कॉसेक भी निकाल सकते हो, सेक भी निकाल सकते हो और कॉट भी निकाल सकते हो. ठीक है, सो आई हैव अ वेरी सिंपल वेरी शॉर्ट मेथड दैट इन साइन थीटा यू हैव अपोजिट एंड हाइपो दैट इज ओ एंड एच. सो वी विल राइट एज ओ एच. याद ये रखना OH where opposite and hypo, that is sin theta, that is called O. In English it is called O. Then in cos you have adjacent upon hypo, that is AH. In English it is called A. So sin theta you obtain, that is OH, O, which is opposite upon hypo. Cos theta you obtain, that is AH, that is called adjacent upon hypo. अगर इन दोनों को डिवाइड भी करेंगे so ये दो कट हो जाएंगे. So क्या बच जाएगा? Opposite upon adjacent, which become the formula of tan theta as well, which is O upon A. Got it? तो सिर्फ आपको याद क्या करना है? साइन थीटा दैट इज OH अपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा दैट इज AH एडजेसेंट अपॉन हाइपो. व्हेन यू डिवाइड बोथ ऑफ देम तो आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा? टेन थीटा का. बाकी रिमेनिंग तो एज यू नो, वापस बता रहा हूं, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो ये याद रखना है. दिस यू डिडंट नीड टू रिमेंबर. ये रिमेंबर नहीं करना है. क्यों? क्योंकि जैसे एंगल बदलेगा, ट्राइंगल्स बदलेंगे, वैल्यूज बदल जाएगी, ये वैल्यूज बदल जाएगी. ठीक है, नेम्स बदल जाएंगे, A B B C बदल जाएगा. बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस कि साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो होगा, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो होगा, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा.
कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो जो भी साइन की वैल्यू होगी उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, सो जो भी कॉस थीटा की वैल्यू होगी उसको अपोजिट कर देंगे। कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये जो वैल्यूज है इसको उल्टा कर देंगे। एंड मोर ओवर दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1/10। ठीक है, तो ये कुछ 6 फॉर्मूलाज हैं जो आपको एक्सरसाइज 8.1 में करने हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. Okay, now look at exercise 8.1 first question. Now look at the question. Exercise 8.1, in triangle ABC, right angled at B, AB is 24, BC is 7. Determine sin A cos A. First question. Then second one is sin C cos A. Correct? So you are given a right angle triangle, exercise 8.1. We are on exercise 8.1 first number. So question is, in triangle ABC, right angled at B. So you are given a triangle ABC. You are given a triangle ABC. Correct? Right angle at B. So right angle at B. AB is 24. AB is 24. BC is 7. Determine the value of sin A. First question is determine the value of sin A and cos A. Second question is sin C and cos C. Correct? Okay, so this is the question. Now first question is AB is given 24, BC given is 7. You need to find sin A cos A and sin C cos C. Correct? So what we will do is we will apply first of all Pythagoras theorem, then we will find first of all AC. So by Pythagoras theorem, apply the Pythagoras theorem, that is AC square equals to AB square plus BC square. Now you know AB is your 24, so 24 square plus BC is your 7 square. If you square 24, that becomes your 576, and 7 square is 49. So when you add, this becomes your 625, that is your AC square. So to find AC, 625, square root of 625 is 25. So you obtained AC, that is 25. Got it? Now what you need to find? You need to find the value of sin A. Now you know the formula. Let us recall first of all. Sin A is opposite upon hypo. Cos sin A, for example, sin is opposite upon hypo. Cos is adjacent upon hypo. Correct? And you need sin and cos only. Correct? So sin A, the formula for sin A is opposite upon hypo. Now we have to take this A. तो अब A पे चले जाओ. A कहाँ पर है? ये रहा. This is your angle. ये A हो गया. अब इसके लिए जैसे मैंने उधर भी बताया था कि अपोजिट क्या होगा? This is your opposite side. This is your adjacent side. This is your always fixed hypo. So for our case, इसके लिए अपोजिट साइड कौन सी हो गई? BC हो गई. एंड हाइपो साइड कौन सी हो गई? AC हो गई. करेक्ट? एंड यू नो बोथ ऑफ देम. BC is 7 and AC is 25. So you obtain sin A, that is 7/25. Correct? In the same way you can obtain cos A as well. So let us find cos A. How you will find cos A? Cos A is, you know the formula, that is adjacent upon hypo. So cos A के लिए adjacent क्या हो गया? This side, that is AB, and hypo is AC. Now AB is 24 and AC is 25. So you obtain cos A as well. Correct? In the same way you can find sin C as well. So sin C, the formula remains same, that is opposite upon hypo. But go back to your C. C यहाँ पर है. ठीक है? So ये अब हट जाएंगे. So for sin C, this becomes your opposite side and this becomes your adjacent side. So sin C opposite, that is your AB, and hypo is again AC. Now AB is 24 and AC is 25. So you obtain sin C as well. In the same way you can obtain cos C. What is cos C? That is your formula, you know, that is adjacent upon hypo. Now adjacent, in our case sin cos equal adjacent is BC and hypo is AC. So BC, what is BC? It is your 7
and AC is your 25. Correct? So you obtained 4 value, that is sin A 7 by 25, cos A 24 by 25, sin C 24 by 25 and cos C 7 by 25. Correct? Now look at the second question. See, second question is, in figure 8.13 you are given a figure 8.13 that is like this. This is P, Q and R. This is 12, this is 13. You need to find tan P minus cot R. Correct? You need to find the value of tan P and cot R. Okay, now see, what we will do, first of all, we will apply Pythagoras theorem, and first of all we will find QR. Correct? So apply Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, what can I say? PR square equals to PQ square plus QR square. PR is 13, so 13 square. PQ is 12, so 12 square plus QR you need to find. 13 square is 169. 12 square is 144 plus QR square. So QR square equals to, take this 144 that side, 169 minus 144, that is nothing but 25. So you obtain QR square, therefore QR is nothing but 5. So you obtain QR, that is 5. Correct? What you just need? The formula of tan and cot, and direct we will find the value. So first of all we will find tan of P. Now you know the formula of tan, OH upon AH. So HH gets cancelled, that is opposite upon adjacent. Correct? So for our case, as this is hypofixed because this is a right angle triangle, this would be the hypotenuse side. Now go to tan P. Tan P पे चले जाओ. So tan P के लिए this becomes opposite side and this becomes adjacent side. So opposite side for tan P becomes your QR and adjacent side becomes your PQ. Now put the value. QR is 5 and PQ is 12. So we obtain tan P, that is 5 by 12. In the same way, let us find cot R. Now you know cot and tan are the reciprocal. So जो tan का फॉर्मूला होगा उसको उल्टा कर देंगे. That is adjacent upon opposite. लेकिन अब R में जाना पड़ेगा. So R angle ये है. This is your R angle. So for this angle, this side becomes opposite and this side becomes adjacent. Formula is adjacent. So adjacent is your QR and opposite is your PQ. So QR is 5 and PQ is 12. So you obtain cot R, that is also 5 by 12. You know you have to subtract both of them. So tan P minus cot R, that is 5 by 12 because tan P is 5 by 12 and this is also 5 by 12. Both gets cancelled out, so the answer is 0. Correct? So you obtain, that is tan P minus cot R, the value is 0. Correct? In the same way, look at your sum number third. We will do sum number third as well. Now look at your sum number third. Question is, if sin A equals to 3 by 4. आपको एक सिचुएशन दिया है कि sin A is 3 by 4. Find the value of cos A and tan A. Correct? You need to find these two values. Correct? So how? Now look at this. This is one pattern question. कि अभी कब आने वाले क्वेश्चंस में भी क्या होगा, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देंगे और आपको बोलेंगे रिमेनिंग ऑल द फंक्शंस आप निकालो. ठीक है? क्या करेंगे? टेक्निक सेम है. सी व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ट्राइंगल. हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, दैट इज योर लाओ. अब देखो साइन ए है, सो ए तो कभी राइट एंगल हो नहीं सकता, तो आप कोई भी ट्राइंगल कंसिडर कर लो जहाँ पे ए ये होगा, बी आपका राइट एंगल है और सी आपका ये है. अब अगर इसके हिसाब से फॉर दिस ए अगर एंगल है, सो दिस बिकम्स योर अपोजिट एंड दिस बिकम्स योर एडजेसेंट. करेक्ट? सो यू नो द फॉर्मूला फॉर साइन. साइन ए का फॉर्मूला क्या है? दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपो. इन आवर केस अपोजिट इज ए के लिए बी सी एंड हाइपो इज ए सी, और साइन ए की वैल्यू भी आपको दी हुई है, दैट इज 3/4. अब हम क्या करेंगे? वी विल टेक सम एक कॉन्स्टेंट, हम एक कोई भी एक वेरिएबल में नंबर ले लेंगे, लेट अस टेक के. सो जब कंपैरिजन करेंगे, सो बी सी वुड बी 3k एंड ए सी वुड बी 4k. जस्ट इसको कंपेयर करके 3k 4k निकल जाएगा. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल फाइंड अदर साइड विच इज द लास्ट साइड, थर्ड साइड. क्यों? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर.
Now you know AC square, that is 4k square. AB you know, no, you don't know AB, so keep AB as it is. Now you know BC as well. BC is 3k, so 3k square. Now 4 square 16k square. AB square as it is, 3k square is 9k square. To find AB square, take this 9k square here. So 16k square minus 9k square, that is nothing but 7k square. 16 minus 9 is nothing but 7. So you have obtained AB square. To find AB, take the square root. So root 7k. So you obtain AB as root 7. अब आराम से कोई भी वैल्यू मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड cos A. Now tell me, cos A formula is AH, that is adjacent upon hypo. Now tell me adjacent, cos A के लिए adjacent जैसे बताया AB and hypo is AC. Now you obtained AB, AB is root 7k and AC is your 4k. So k get cancel, answer root 7 by 4. In the same way, tan A you know, that is opposite upon adjacent. Now in our case opposite is BC and adjacent is AB, correct? Now tell me, BC is 3k and AB is root 7k. So k again get cancel, answer 3 by root 7. Now look at the fourth number. Okay, now look at the question, repeated question of third. You are given in fourth, that is 15 cot A equals to 8. So 15 cot A equals to 8 and you need to find the value of sin A and sec A. You need to find the value of sin and sec. This is our fourth question, and similarly you have fifth question as well, that is sec theta is 13 by 12 and you need to find all the trigonometric ratios, correct? Okay, so you need to find all these values. So let us start. 15 cot A equals to 8 with the help of the sec. जैसे हमने third question किया, same technique we will use and we will find the remaining trigonometric ratios. So as 15 cot A equals to 8, can I write as cot A equals to, take this 15 in the denominator, so it would be 8 upon 15. Now use your trigonometric table. As this is A, take this as A, B and C. This is a right triangle, correct? Cot A, अगर आपको cot A से नहीं करना है तो आप you can use tan A as well, कि आपको ये पता है कि tan और cot एक दूसरे के reciprocal होते हैं. So cot is 8 by 15, so reciprocal that, so it would be 15 by 8. So A is thus, for this consider all the sides. This becomes your opposite, this becomes your adjacent. Now you know that the formula for tan is OA, that is opposite upon adjacent. In our case opposite is BC and adjacent is AB. You can take a variable that is called K, then you can compare. So BC would be 15k and AB is 8k. Got it everyone? Now with the help of Pythagoras theorem, that is AC square equals to AB square plus BC square. Now you know AB, that is 8k square, BC, that is 15k square, 8 is 64k square, 15 square is 225, so 225k square. So when you add 225k square with 64, you will obtain 289k square, which is the square root of 289 is 17k. So you obtained AC, that is 17k. Now you can find any trigonometric ratio. For example, if you need to find sin A, now you know the formula of sin A, that is OH, opposite upon hypo. So A के लिए opposite is BC and hypo is AC. So BC is 15k and AC you obtain, that is 17k. So k cancel, answer 15 by 17. In the same way you can find sec A as well. देखो sec A का formula, if you don't remember the formula for sec A, try to remember the formula of cos. So you know the formula of cos, that is AH, adjacent upon hypo, reciprocal that, so it becomes hypo upon adjacent. So A के लिए hypo हो गया AC and adjacent बन गया AB. AC is 17k and AB is 8k. So answer 17 by 8. Got it? In the same way, with the help of the sec theta, अब इस क्वेश्चन में क्या है, 5 नंबर, कि आपको sec theta दिया है, आपको रिमेनिंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने. तो यहाँ से एक चीज तो फाइनल हो जाएगी, cos थीटा
तो यू नो sec and cos आर द रेसिप्रोकल. सो ये 13/12 है तो इसको उल्टा कर देंगे, दैट बिकम्स योर 12/13. Got it? Now with the help of the same technique, we will find all the other trigonometric ratios. See, let us consider a triangle ABC. Let us take this as theta. Now use this cos. Now for this theta, this becomes your opposite side, this becomes your adjacent side, this becomes your hypo. Done. Now you know the formula for cos theta, 12/13. You know that is AH. Adjacent you have BC and hypo is your AC. Correct? Now let us take as K. So let us compare. So BC becomes 12K, AC becomes 13K. Now apply Pythagoras theorem. That is AC square equals to AB square plus BC square. Got it? Now AC square. Now value of AC square. AC is 13K square. So let us put direct square only. So AC is 13K. Square of 13 is 169K square. AB you don't know. You need to find the value of AB. So AB square as it is. Now BC square. BC is 12K. Square of 12K. That is 144K square. So if you need to find AB square, take this 144 this side. So 169 minus 144 becomes your 25K square, which is nothing but 5K. Got it? So you obtained AB, that is 5K. And you have BC, that is 12K. And AC as 13K. Got it? Now you need each and every trigonometric ratio. So you obtain sec and cos. Let us find sine. Sine find करते हैं. Sine you know formula is OH, opposite upon hypo. Opposite is, see, direct putting the value 5K and hypo is 13K. So K cancel, answer 5/13. With the help of sine you can find cosec as well because both are reciprocal. So as this is for 5/13 reciprocal, that would become 5/13. Sorry, 13/5. Now you know tan theta. Formula is OA, opposite upon adjacent. OA, so 5K upon 12K, 5K upon 12K, K cancel, 5/12 answer. Now on the base of this you can find cot theta as well, which is the reciprocal of 10. So 5/12 reciprocal that, it becomes 12/5. Correct? So this is our sum number 5th. Let's start sum number 6, which is an important sum और थोड़ा टफ है, ज़्यादा नहीं थोड़ा. So sum number 6. Look at sum number 6. एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी. आपको ये गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स. ठीक है, एक्यूट एंगल्स आपको पता है 90 से छोटा, लेकिन कॉन 90 डिग्री पे वो नहीं दिया है. बट द क्वेश्चन इज सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी. दिस सिचुएशन इज गिवन, दैट इज कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी. And you need to prove that is angle A equals to angle B. You need to prove this, angle A equals to angle B. Correct? So we will use some technique कि you know cos A and cos B are equal. So what we will do, let us draw a triangle. मैंने एक triangle draw किया. This is your triangle. A यहाँ पे ले रहा हूँ, B यहाँ पे ले रहा हूँ, और this is your C. Correct? This is an acute angle triangle. Kush angle A and angle B are acute angles. These are acute angles. Now cos A equals to cos B. So let us do, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक altitude निकाला मैंने. This is your 90 डिग्री. ठीक है, सीधी लाइन नहीं है पर कंसिडर कर लेना कि ये सीधी लाइन है. ठीक है, so this is a straight line, 90 डिग्री पे बन गई. That is, let us give this name as D. ठीक है, अब आपको ये पता है cos A and cos B are equal. ठीक है, so look at your triangle CDA. अब ये ट्राइंगल में देखना, CDA एक राइट एंगल ट्राइंगल है at D. Got it? सो यहाँ पे आपको पता है cos A और cos B इक्वल दिए. सो क्या करेंगे, सुनो, cos A का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज AH एडजेसेंट अपॉन हाइपो. अब A पे आ जाओ, राइट एंगल ट्राइंगल आपका CDA है. इस एंगल के लिए ये वाली अपोजिट साइड है, ये वाली एडजेसेंट साइड है और ये वाली हाइपो साइड है. ठीक है, तो cos A का फॉर्मूला AH, एडजेसेंट इज योर AD एंड हाइपो इज योर AC. गॉट इट? इक्वल्स टू cos B पे आ जाओ, फॉर्मूला रिमेन सेम, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो. फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा. सो B, इसके लिए ये एडजेसेंट, ये अपोजिट, ये हाइपो. सो एडजेसेंट इज BD एंड हाइपो इज BC. गॉट इट? अब ये रेशियो है, लेट अस टेक एज अ वेरिएबल ले लेते, K लेके चलते. अब आप क्या कर सकते हो, कंपेयर दिस विथ K, कंपेयर दिस विथ K. तो देखो क्या मिलेगा, व्हेन आई कंपेयर AD अपॉन AC विथ K. अगर मैं AD अपॉन AC को K से कंपेयर करूंगा, सो आप बोलोगे AD इक्वल्स टू K इंटू AC. That is not K is here, K into AC.
और जब इधर कंपेयर करूंगा बी डी अपॉन बी सी इक्वल्स टू के, सो बी डी की जो वैल्यू है वो के इंटू बी सी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन बोथ द राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, और फिर सिंप्लीफिकेशन ही है। ठीक है, सो लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन सी डी ए। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। दिस इज 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज साइड है, सो सी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको जो वैल्यू पता वो पुट ऑन कर दो, जिसकी वैल्यू पता पुट ऑन कर दो। देखो आपको ए डी पता है, दैट इज के ए सी, सो इट ए डी की जगह पे के ए सी पुट ऑन कर देते हैं प्लस डी सी स्क्वायर। गॉट इट, कि ए डी की जो वैल्यू है दैट वाज के इंटू ए सी, सो के ए सी पुट ऑन कर दी, स्क्वायर कर देंगे। सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। गॉट इट, अब गौर से देखो यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर है। ठीक है, तो काम करते इधर ए सी स्क्वायर ले लेते हैं। सो ए सी स्क्वायर यहाँ पे लेके आओगे माइनस के स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर। नाउ टेक द कॉमन फ्रॉम दिस टू, सो ए सी स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस के स्क्वायर रिमेन्स दैट इज इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर। गॉट इट, समझ में आया कि ए सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे के स्क्वायर बचा, खत्म। इन द सेम वे, बस अब इसको यहीं तक छोड़ो, अभी आगे देखेंगे क्या करना है। इन द सेम वे लुक एट द ट्रायंगल सी डी बी, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। सो बी सी इज द हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी ना लिख करके एज यहाँ पे डी सी लिख रहे हैं तो हम डी सी स्क्वायर ही लिखते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे किया, नेक्स्ट स्टेप क्या किया, जिसकी वैल्यू पता है पुट ऑन कर दो। यू नो बी डी दैट इज के बी सी, यहाँ पे के बी सी लगा दो। सो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर, यू नो दैट इज के बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब के बी सी स्क्वायर का फॉर्मूला, सॉरी स्क्वायर, सो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर को यहाँ ले लो। सो बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर। नाउ व्हेन, अब कॉमन भी दिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ निकला था। सो बी सी स्क्वायर कॉमन, व्हाट रिमेन्स 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर। डन, नाउ लुक एट बोथ दिस इक्वेशन, यहाँ पे डी सी स्क्वायर ये है, यहाँ पे डी सी स्क्वायर ये है। इट इज लाइक ए इक्वल्स टू बी एंड ए इक्वल्स टू सी। सो कैन आई कंपेयर दिस, बी इक्वल्स टू सी, सही है। ये डी सी स्क्वायर इससे इक्वल है, ये डी सी स्क्वायर इससे इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये दो इक्वल होंगे। सो ए सी स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर कैंसल। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अगर इक्वल हो सकता है, सो ए सी इक्वल्स टू बी सी नहीं हो सकता। स्क्वायर इक्वल होंगे तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल ही होंगे ना, रूट निकालोगे आप, स्क्वायर रूट निकालोगे तो ए सी और बी सी इक्वल होगा। अब इस ट्रायंगल में देखो ए सी एंड बी सी आर इक्वल, दिस ए सी एंड बी सी आर इक्वल। नाउ यू माइट हैव स्टडीड इन अ ट्रायंगल कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस ए सी का जो अपोजिट एंगल है दैट इज बी, सो एंगल बी, और बी सी का जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल ए, वो एंगल इक्वल होगा। वही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, वापस बताता हूँ फटाफट। देखो क्या था, कॉस ए एंड कॉस बी इक्वल दिया था, हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया इक्विड एंगल, कॉस ए कॉस बी लिखा, कॉस ए कॉस बी ए डी अपॉन ए सी बी डी अपॉन बी सी इक्वल्स टू के, दोनों को कंपेयर किया, ए डी की वैल्यू बी डी की वैल्यू। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जिसकी वैल्यू बता दी पुट ऑन करी, यहाँ पे लेके आए डी सी स्क्वायर मिला। सेम वे यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करी, यहाँ पे लेके आए डी सी स्क्वायर, ये भी डी सी स्क्वायर है ये भी डी सी स्क्वायर है, दोनों को कंपेयर कर दिया। 1 माइनस के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर से इक्वल हो सकता है, सो ए सी और बी सी इक्वल ही होगा। अब ए सी का आपने पढ़ा है कि इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, तो उनके जो भी अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो ए सी का जो अपोजिट एंगल है दैट इज बी, और बी सी का जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल ए, बोथ आर इक्वल, वही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, नाउ वी आर ऑन द सम नंबर 7, सो लेट अस स्टार्ट सम नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सम नंबर 7 इज, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, अगर आपको कॉट थीटा दे दिया जाए दैट इज 7/8, आपको इवैल्यूएट करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड आपको वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, सो ये आपको एक क्वेश्चन है 7 नंबर। क्या क्वेश्चन है वापस बता रहा हूँ। कॉट थीटा आपको दिया हुआ है दैट इज 7/8 है। ठीक है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा 1 प्लस साइन अपॉन 1 इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, और सेकंड आपको पूछा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेड ही क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉट थीटा दिया है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। सो एक फर्स्ट मेथड इज फाइंड साइन एंड कॉस विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल मेथड, जैसा हम पिछले सम्स में कर रहे हैं। ट्रायंगल मेथड से साइन और कॉस निकाल लो, जैसे मिल जाए पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे तो कॉट स्क्वायर है, तो सेकंड इक्वेशन को फटाफट कर दे रहे, क्योंकि कॉट अपने को पता है और कॉट स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा आपका 7/8 है। सो आप क्या करोगे 7/8 का स्क्वायर, सो आंसर वुड बी 49/64। तो ये तो यहीं पे गेम ओवर हो गया, सही है कि नहीं। अब सेकेंड जो अपना फर्स्ट है, इसको सॉल्व करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते क्या आता है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। डन। सो लेट अस सिंप्लीफाई। अगर आप ऊपर न्यूमरेटर में देखो, ध्यान से देखो प्लीज, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। ठीक है, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, इट इज लाइक a प्लस बी एंड a माइनस बी। करेक्ट। सो पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 एंड साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी अगेन। सो 1 का स्क्वायर 1 एंड कॉस का कॉस स्क्वायर। चलो ये बात तो फाइनल है कि इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब सीधी वैल्यू साइन थीटा की फाइंड कर देते और कॉस थीटा की फाइंड कर देते, पुट ऑन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस फाइंड। आपको ये पता है कि इसमें हम एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका थीटा रहेगा। ठीक है, कॉट थीटा अगर डिफिकल्ट पड़ता है तो आप टेन थीटा पे जा सकते हो, पर अपने कॉट थीटा से चालू करते हैं। कॉट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेन। टेन आपको पता होगा ओ एच अपॉन ए एच, एच एच कैंसल, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना जो कॉट थीटा है, अपना जो कॉट थीटा है दैट इज 7/8। ये किसकी वैल्यू होगी, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट की। तो इस केस के लिए हाइपो तो ये फिक्स है, ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है। आपको टेन पता है दैट इज ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका होगा एडजेसेंट जो इस केस में बी सी है और अपोजिट दैट इज ए बी, और इसको ले लेंगे इक्वल्स टू के। सो आपको बी सी मिल जाएगा 7 के कंपैरिजन के साथ एंड ए बी मिल जाएगा आपको 8 के। गॉट इट। अब पाइथागोरस थ्योरम दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ ए बी दैट इज 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, 8k का स्क्वायर दैट बिकम्स योर 64k स्क्वायर and 7k का स्क्वायर दैट बिकम्स योर 49k स्क्वायर। नाउ 64 and 49, so 9 plus 4 13, 6 plus 4 10 and 11, 113k स्क्वायर। रूट निकालोगे 113k आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू फाइंड करने की है। चलो यहाँ कर देता हूँ। साइन थीटा अपने को चाहिए, सो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट दैट इज ए बी, ए बी की वैल्यू इज 8k, सो ए बी इज 8k अपॉन हाइपो, हाइपो इज ए सी, ए सी की वैल्यू हमने फाइंड करी दैट इज रूट 113k, सो के कैंसल, आंसर 8/√113। उसी तरीके से हम कॉस भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट आपका बी सी की वैल्यू आपको पता है दैट इज 7k एंड हाइपो इज ए सी और ए सी की वैल्यू इज √113k, सो 113k, के कैंसल, आंसर 7/√113। ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट ऑन कर दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे 1 माइनस, इधर भी ले लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस है 7/√113, तो 7 का स्क्वायर 49, इसका 113। नाउ टेक द एलसीएम, इधर लोगे सो 113 सब्ट्रैक्ट, वहाँ पे जाएगा 113 माइनस 64, इधर 113 माइनस 49, तो अल्टीमेटली 113 कैंसल। नाउ सब्ट्रैक्ट 113 माइनस 64। अब आपको पता है 64 में 49 ऐड किया था तो 113 आया, सो 113 में से 64 माइनस करोगे तो 49 आ जाएगा, करेक्ट। और 113 माइनस 49 करोगे तो 64 आ जाएगा, सो आंसर 49/64, करेक्ट। कैंसिल हो नहीं रहा, सो दोनों का आंसर 49/64। डन। सो दिस इज योर सम नंबर 7। नाउ सम नंबर 8, लेट अस स्टार्ट सम नंबर 8। सो देखो आपका सम नंबर जो 8 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 cot A इक्वल्स टू 4 गिवन है। आपको चेक करना है वेदर
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. करेक्ट. दिस यू नीड टू प्रूफ, यू नीड टू चेक. प्रूफ तो नहीं है पर चेकिंग है कि 3 कॉट ए अगर 4a होता है तो आपको ये प्रूफ चेक करना है. सो कुछ नहीं करेंगे, वी विल फाइंड कॉट ए. यहाँ से कॉट ए फाइंड कर देते. चलो, कॉट ए इक्वल्स टू 4/3. ठीक है. फ्रॉम कॉट ए यू कैन फाइंड tan a एज वेल, जो आपको रिक्वायर्ड है. सो tan a इज नथिंग बट, रेसिप्रोकल कर दो, सो 3/4. सो tan a की वैल्यू तो आप यहाँ पे पुट ऑन कर दोगे, पर आपको cos a और sin a भी चाहिए. वो कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल मेथड. ठीक है. सो चलो वो स्टार्ट कर देते फटाफट. आपका tan a है, सो a यहाँ पे रख देंगे, b यहाँ पे एंड c यहाँ पे. ठीक है. नाउ tan a फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो अगर सॉरी a यहाँ पे नहीं रख सकते, करेक्ट, क्योंकि a यहाँ पे है. सो a चलो यहाँ पे रखेंगे, b यहाँ पे एंड c हियर. करेक्ट. नाउ tan a के लिए, इस एंगल के लिए ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया एंड दिस इज योर हाइपो. सो अपोजिट दैट इज योर bc and adjacent that is your AB and compare it with K. So BC equals to 3K and AB equals to 4K. Now apply Pythagoras theorem, that is AC square equals to AB square plus BC square. AB is your 4K square, BC is your 3K square. 4K 16K square, 9K square, answer 25K square, which is nothing but 5K. So you obtain AC, that is 5K. अब कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट ऑन करेंगे. सो लुक एट योर LHS. चलो पहले LHS सॉल्व करा जाए, विच इज 1 माइनस टेन स्क्वायर. डायरेक्ट पुट ऑन करता हूँ मैं. 10 स्क्वायर, 10 इज 3/4, स्क्वायर कर दो. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, टेक 1 LCM अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए. 10 इज 3/4, स्क्वायर ऑफ 3 9, 16 LCM लो. 16 is LCM into 16 minus 9 upon 16 LCM. 16 plus 9, 16 cancel. So answer is 16 minus 9 is 7 and 16 plus 9 is 25. So LHS you have to have 7 upon 25. Now check whether this is also 7 upon 25 or not. So RHS. Now look at RHS, which is cos square A minus sin square A. Cos square A. So we need cos A. So एक काम करें, चलो cos A फाइंड करेंगे यहाँ से. cos A फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपो. A के लिए एडजेसेंट AB is 4K अपॉन हाइपो इज AC is 5K. So 5K 4/5. करेक्ट. So cos square A. So square this, 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 minus sin A. Let us find sin A as well. Sin A is opposite upon hypo. Sin A opposite is BC, which is 3K. And hypo is AC, which is 5K. So 5K, K cancel, answer 3/5. Square 3/5. 3 का square 9 and 5 square 25. LCM of 25 and 25 is 25 only. So 16 minus 9, कुछ भी multiply नहीं करेंगे. 16 minus 9 is nothing but 7 upon 25. Thus LHS and RHS are equal. So you can say कि yes, both of them are equal. Correct? So this is your sum number 8. Now let us start sum number 9, which is an important question also. एंड थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा टफ है. ठीक है. सो सम नंबर 9. सो लुक एट हियर. इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, यू आर गिवन अ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज राइट एंगल एट B. वो राइट एंगल है B पे. सो मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बना दिया. ट्राइंगल ABC. इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, find the value of, you need to find the value of first of all you need to find the value of that is sin A into cos C plus cos A into sin C. Second, you need to find the value of cos A, cos C minus sin A and sin C. Correct? So this is your question. Very easy question. वैसे आपको लगेगा टफ है कि यार यहाँ से कैसे इतना सारा निकालना, पर है बहुत इजी. जो हम कर रहे हैं वही करेंगे. सी आपको tan A दिया है, यू आर गिवन tan A एंड यू नीड sin A, cos A, sin C. तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ tan A that is 1/√3, we will find each and every value that is AB, BC and AC.
then we will put the formulas and we will get the answer. Correct? So as tan A, you know what is tan A? Tan A, the formula is opposite upon adjacent. Now this is A. Now look at here, ये A है. So for this becomes your opposite. Correct? This becomes your opposite. Okay, for tan A, this becomes your opposite, and this becomes your adjacent, and this becomes your hypo. Correct? वापस A ये रहा, A के लिए ये opposite बन गया, ये adjacent है और ये hypo है. So opposite is your BC, BC आपका opposite है, so हम यहाँ पे लिखेंगे BC, and adjacent आपका AB. Now take it K. So आप बोलोगे BC K हो गया. सो BC की जगह पे यहाँ K लिख देते हैं और AB इज √3K, तो यहाँ पे लिख देंगे √3K. ठीक है. नाउ लेट अस पुट द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ यू नो AB दैट इज √3K स्क्वायर प्लस BC इज K स्क्वायर. सो √3 दैट इज 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर. नाउ 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बिकम्स 4K स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, सो इट इज 2K. So you obtained AC, that is 2K. Correct? अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट ऑन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज पुट ऑन कर रहा हूँ. साइन ए, व्हाट इज साइन ए? साइन ए क्या होता है? यू नो अपोजिट अपॉन हाइपो, तो ए के लिए अपोजिट दिस इज अपोजिट, दैट इज के. यहीं पे वैल्यू पुट ऑन करेंगे. सो के अपॉन हाइपो इज AC, दैट इज 2K इंटू कॉस C. अब C पे आ जाओ, फॉर्मल डिमेंशन दैट इज AH, एडजेसेंट अपॉन हाइपो. तो इस C के लिए अपोजिट ये हो जाएगा, एडजेसेंट ये हो जाएगा. इस C के लिए एडजेसेंट ये हो जाएगा, दैट इज BC. BC की वैल्यू K है, एंड इसके लिए हाइपो, तो 2K फिक्स ही होगा, प्लस cos A. फॉर्मूला रिमेन सेम, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, लेकिन A के लिए तो अपने ने एडजेसेंट ये रहा, विच इज √3K अपॉन हाइपो, तो फिक्स है, दैट इज 2K. द सेम है साइन C पे आ जाओ, C पे आ जाओ, फॉर्मूला रिमेन सेम, दैट इज OH. अपोजिट, इसके लिए ये अपोजिट, ये हाइपो, सो अपोजिट इज √3K अपॉन हाइपो इज 2K. K cancel. Now this is look like 1. So 1 1s are 1, 2 2s are 4. √3 into √3, 3. 2 2s are 4. Take the LCM. 4 or 4 LCM 4. 1 plus 3, 1 plus 3. 4 upon 4. Answer is 1. खत्म. Now cos A. अब you can find the value or you can directly put. See cos A. Cos A क्या आया था? √3K upon 2K. So √3K upon 2K into cos C. What was cos C? That is K upon 2K. K upon 2K minus sin A. What is sin A? That is K upon 2K. K upon 2K. And sin C. Sin C is √3K upon 2K. So K cancel. √3 into 1. √3. 2 2s are 4. 2 2s are 4. 1 into √3 into this. Yeah, √3 into 1, √3. 2 2s are 4. Okay. Minus √3 into 1 again, √3. And 2 2s are 4. Both terms are same. So cancel. Answer equals to 0. So you obtain the value, that is first is 1 and the other one is 0. So let us start the last question, that is sum number 10. ठीक है, let us start the sum number 10. See the question. In triangle PQR right angled at Q, you are given a triangle PQR right angled at Q. Correct? PR plus QR is 25. PR plus QR is 25. PQ is 5. PQ is 5. PR plus QR is 25. Determine the values of sin P. Sin P you need to find. Cos P and tan P. Correct? This values you need to find. Now see what we will do in this question. See, in the place of PR and QR, आपको पता है PR और QR जो है दोनों वेरिएबल है और दोनों नहीं पता. So take anyone as X. PR को X ले लो या QR को X ले लो, जिसको लेना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग QR एज X, सो PR वुड बी PR, टेक QR दैट साइड, सो इट वुड बी 25 माइनस X. करेक्ट? नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. आई पुट ऑल द वैल्यूज. PR इज 25 माइनस X, PQ is 5, QR is X. Correct? Now apply A minus B the whole square formula. A square 25 square minus 2 A B plus B square X square 5 square
25 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गेट कैंसल आउट, क्योंकि अल्टीमेटली वो वहाँ पे जाएगा माइनस ही होने वाला है। 25 स्क्वायर इज 625, 25 स्क्वायर इज 625 माइनस 2 इंटू 25 दैट इज 50x इक्वल्स टू 25। नाउ टेक माइनस 50x दिस साइड एंड 625 को उधर ले लो। 25 माइनस 625 दिस इज नथिंग बट 25 माइनस 625 करेंगे सो माइनस 600, so minus minus cancel, x 600 by 50, so 12, 5 12 are 60, so you obtain QR that is 12, so यहाँ पे लगा देते 12 and 25 minus 12, 25 minus 12 that is 13, so you obtain PR also that is 13. Now put all the values. Sin P is nothing but opposite upon hypo, correct? So sin P इसके लिए ये रहा, ये opposite that is 12 and hypo that is 13, खत्म। cos p के लिए एडजेसेंट दिस हाइपो दिस, तो एडजेसेंट 5 हाइपो 13, tan p OA अपोजिट tan p अपोजिट दैट इज 12, tan p के लिए अपोजिट कौन सा है 12 ना, एंड एडजेसेंट 5, करेक्ट। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ sin p cos p एंड tan p. सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 10. नाउ लेट अस स्टार्ट सम नंबर 11 स्टार्ट करते, ठीक है। अगेन वेरी इजी, दैट इज स्टेट वेदर दे आर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर, ठीक है। उसको करना नहीं है, हम जस्ट जस्टिफाई करके फटाफट कर देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। इधर ही देख लो, 10 a है या 10 p है, वैल्यू इज 12/5, 12/5 इफ यू डिवाइड 12/5 आंसर वुड बी ग्रेटर देन 1। सो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि 10 a की जो वैल्यू है इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1, कभी कभी वो 1 से भी ग्रेटर हो सकती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड नंबर, sec a इज 12/5, ठीक है। sec a आपका 12/5 है, सो आप क्या करो, डायरेक्ट अपने रेशियो में नहीं जाते, लेट अस टेक कंसिडर, डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे। ये आपका a है, ठीक है, दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर c, ठीक है, सॉरी ABC। अब a जो है आपको पता है cos का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, सो हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो आपका 12 हो गया, एडजेसेंट आपका 5 हो गया। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी एंड सच ट्राइंगल वुड बी पॉसिबल। सो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। नो, cos A जो है वो यूज होता है कोसाइन के लिए, करेक्ट। कोसेकेंट ऑफ एंगल A इज यूज्ड फॉर कोसेक, cos जो है वो कोसाइन है और कोसेक जो है वो कोसेकेंट है। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट, दैट इज cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नो, cot A जो है, जैसे कि अगर एक cot A अगर यहाँ सॉरी कहीं पे भी लिखो, cos P लिखो, तो cos P इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cos एंड P, प्रोडक्ट नहीं है। व्हाट इज दिस, इट इज द वैल्यू ऑफ cos एट एंगल P। सो cot A इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, इट इज द वैल्यू ऑफ cotangent that is cot at angle A. So the fourth statement is also false. Now put sin theta equals to 4/3. If you put sin theta equals to 4/3, that's 4 is your opposite. अगर sin theta का you know the formula, that is opposite upon hypo. So sin theta that is opposite, so your opposite value is 4 and hypo is 3. So इस केस में क्या हो रहा है, हाइपो छोटी हो जा रही है और अपोजिट वैल्यू बड़ी हो जा रही है। सो यू नो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि इस केस में हाइपोटेन्यूज छोटा हो जा रहा है और दूसरी साइड लॉन्गर हो जा रही है, करेक्ट, बड़ी हो जा रही है। तो इसलिए फिफ्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो अगर ट्रू और फॉल्स देखें, सो फर्स्ट इज tan A की वैल्यू लेस देन 1, नहीं, फॉल्स, ठीक है, ग्रेटर भी होती है, फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स, फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स, फिफ्थ स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। सो ये कुछ ट्रू और फॉल्स के आंसर है। वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.1. नाउ इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2. इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो स्टैंडर्ड 10th में हैं। जो नॉलेज आपने ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ से लिया वो उनको भी शेयर कीजिए, उनको भी दीजिए, बिकॉज यू नो शेयरिंग इज कैरिंग, करेक्ट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब अवर चैनल, जो रेड कलर का बटन है वहाँ पे उसको क्लिक कीजिए एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिए, जिससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें।